जी, हमारे साथ इस वक्त अंकित हैं जो कि शिकायत करता है। इन्होंने ही सबसे पहले पुलिस को इसके बारे में सूचना दी और रेस्टोरेंट में जो ग्रुप गया था उसमें एकमात्र शख्स यही थे जिन्होंने उस माउथ फ्रेशनर के या फिर जो केमिकल पदार्थ था उसको कंज्यूम नहीं किया, जिसके बाद ये ठीक हालत में थे और इन्होंने ही वो वीडियो भी जो सबके सामने रखी और पुलिस को कंप्लेन की। अपने दोस्तों को भी अस्पताल पहुंचाकर कहीं ना कहीं समय रहते इन्होंने एक्शन लिया। क्या घटना थी? एक तरह से सेलिब्रेशन जो है वो नाइटमेयर में तब्दील हो गया आप लोगों के लिए। क्या अनुभव था? सबसे पहले किस तरीके से घटना हुई उसके बारे में बताएं। Basically, it was a horrible moment for me because we were there for for one dinner, simple dinner kind of thing, and it went into tears in our entire family eyes. So we were there, three couples, me, my wife, my 1 year daughter was there, and two more couple friends were there. तो हम लोग डिनर कर रहे थे, इट वाज एवरीथिंग वाज गुड। उसके बाद जब बिल हमने क्लियर किया, वी वर अबाउट टू लीव एंड आई वाज होल्डिंग माय डॉटर इन माय आर्म्स एंड all 5 rest of these friends were taking selfies. So suddenly that waiter came and she offered some kind of sugar flakes things, which is casual in restaurants. So they took a little things, only hard to 2 or 3 flakes of that particular instant. So it was in open bowl, there was no packaging at all, and it was similarly as sugar flakes. So they one by one they were taking it. I was standing in the last. Meanwhile, it came to me and I picked it from my hand. Suddenly, whosoever person out of these 5, they took inside their mouth. As soon as they took into their mouth, it started exploding like some chemical reaction. I was shocked what went wrong. Everyone was crying for help. They were down on the floors, and I was not able to understand for next 5 to 6 minutes that what went wrong. Suddenly, I was just begging for help to the restaurant guy because everyone was bleeding, vomiting like hell, and I was having my 1-year-old daughter, and I was helpless over there. So, जो भी हॉस्पिटल, जो भी रेस्टोरेंट टीम मेंबर्स थे, वो अपने किचन, दे वेंट इनटू देयर किचन. नोबडी वाज कमिंग फॉर हेल्प. आई वाज बेगिंग. I forced them to tell at least the name, what was the product, so that I can get medical help accordingly. But they didn't tell even the name. Nobody was even calling to police or ambulance. Even somehow I managed to give ice and water to them to just dissolve. जो भी घटना हुई उसके बाद जब रिएक्शन शुरू हुआ तो रेस्टोरेंट में जो स्टाफ था उसकी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं था, वो आपकी मदद के लिए नहीं आए? बिल्कुल नहीं था. सारे के सारे उनके स्टाफ मेंबर्स अपने किचन में उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया. somehow I managed to call to police on 100 number, and somehow I took that poly bag of that instant. It was a blank poly bag, nothing was written on that. Nobody was about to telling their names, what they had made them eat. So I just took that custody. It took almost 40 minutes, 30-40 minutes to come the police teams. Till then they were helpless over there and crying for help. We were left on our own. And even when police guy came, I was begging them ki whatever you can do later on, but at least make them reach to the nearest hospital, because ambulance was also late. But they were also suggesting to wait for the ambulance, but I did not allow it. Somehow I managed to took all the members in the car in the parking, and I myself drove the car. Even I requested the police officials to at least I'll drive one car along with my baby. At least you just help me to drive one more car, because we were there in 2 cars. No police officials even helped in that. And then somehow I managed to took them in the nearest hospital, and they were admitted, and post some investigation from hospital staff, it was called they told ki it is some kind of chemical which was given instead of sugar flake. I'm not sure why they given it, but I'm basically not finding the words to explain my situation at that. 5 लोग अस्पताल में गए थे. 5 में से अभी लोगों की क्या हालत है और क्या अभी भी अस्पताल में एडमिट है? अभी भी 3 लोग हॉस्पिटल में ही हैं, एक आईसीयू में है. लकीली जो बाकी 4 मेंबर्स थे, उनका वो जो भी केमिकल था वो इनसाइड द मतलब अबाउट द थ्रोट वो नहीं गया,
तो फूड पाइप में ऐसा एज पर डॉक्टर्स उसमें सिर्फ एक पर्सन को कुछ ज़्यादा सीवियर है, इज स्टिल इन हॉस्पिटल, and other guys were shifted to wards, and somehow I had to take a lama from hospital to get my wife out, because I have a 1-year-old daughter and I cannot be keep her away from her mother. आईसीयू में कौन एडमिट है इस वक्त उनका नाम? Abhi, my friend is Deepak, is there still in ICU, and Manik and Deepak's wife is were shifted to ward in yesterday evening, and around 11 o'clock I left the hospital yesterday with my wife. So it was a horrible situation. I cannot, explain it further. You can understand that. बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और उस वक्त अंकित की पत्नी भी उनके साथ थी और हमारे साथ हैं। कल ही हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होकर आए हैं, क्या एक्सपीरियंस था आपका? सबसे पहले तो यही कि 6 सेलिब्रेशन के बाद आप लोगों के साथ ये घटना हुई, कैसा पहला रिएक्शन था जब आपने वो स्वीटनर लिया? तो जैसे ही स्वीटनर मुंह में गया, इट ब्लास्टेड, इट वाज एन एक्सप्लोजन। ऐसा लगा किसी ने एसिड दे पुट इनसाइड माय माउथ, एंड ब्लड, वी वर हेल्पलेस। दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया, और वॉमिटिंग, वी वर क्राइंग, स्क्रीमिंग बैडली कि पानी दो, आइस दो, बिकॉज पूरा टंग बर्न हो गया अंदर से, एवरीथिंग वाज बर्न्ड। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या दिया जो रखते ही मतलब सेंसेशनल, बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया कि किसी ने कुछ एसिड डाल दिया हो मुंह में। सो आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ का कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज जस्ट सेइंग कि मेरा टंग गया, मेरा थ्रोट गया, I need something, and it was bleeding badly. So यही समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब 30-40 minutes तक we were like helpless, screaming around। और the thing is कि हॉस्पिटल, वहाँ के जो रेस्टोरेंट स्टाफ था वो तो कोई आया ही नहीं वहाँ पे। nobody came to help, nobody came to give us water या कुछ वो कोई मतलब वो हमें बताएं कि उन्होंने हमें क्या खिलाया है। nobody told, and 5 of us, luckily Ankit and my baby, they were saved। तो उन्होंने हमें भी थोड़ा किया, लेकिन जो बाकी हम 5 लोग थे, we were like screaming badly, बहुत बुरी हालत थी, बहुत। और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ, एंड बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस। अभी भी उस केमिकल का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है? अभी भी आपको खाने पीने में दिक्कत परेशानी? खाना तो आई कैन नॉट ईट एनीथिंग फॉर 1 वीक। एक हफ्ते तक तो मैं कुछ नहीं खा सकती, सिर्फ लिक्विड, वो भी स्ट्रॉ से मैं ले सकती हूँ, कुछ और नहीं, ओनली लिक्विड, वो भी ठंडा, दैट्स इट। डॉक्टर ने क्या बताया आपको जब डिस्चार्ज किया? तो क्या सावधानियां और रखनी है आगे, या फिर क्या? डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आप 2 दिन और रुक जाओ, मतलब इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और हमें स्टेरॉइड्स वगैरह काफ़ी कुछ दिए जा रहे थे। बट क्योंकि मेरी डॉटर है, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि समहाउ आई विल मैनेज, और आप मुझे थोड़ा जल्दी आप मुझे आईसीयू से निकालो। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, बट वहाँ पर भी हमने 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं खाया, नथिंग, वी वर बेड रिडन, सब ड्रिप्स चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन लाइक दैट। तो यही सब था। रेस्टोरेंट की तरफ से बड़ी नेग्लिजेंस है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, क्या एक्शन आप लोग चाहते हैं? क्या रेस्टोरेंट की तरफ से आपको संपर्क करने की कोशिश की गई है? नहीं, अभी तक होटल वालों ने, किसी ने कोई कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। एंड दिस इज़ द सरप्राइज कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल में भी, हम इमरजेंसी में एडमिट हुए थे रात को 12:30 अराउंड, नोबडी फ्रॉम हॉस्पिटल केम टू हेल्प अस या टू इवन कॉल, या कहाँ गए वो लोग जो यहाँ आए थे, किसी ने कोई हेल्प ही नहीं किया। पुलिस केम आफ्टर वेरी लॉन्ग, वो आए, उन्होंने पूछा हमसे, लेकिन उनकी तरफ से उस टाइम पे जब हम रेस्टोरेंट में थे तब कोई हेल्प नहीं थी। जब रेस्टोरेंट में भी पुलिस पहुंची तो जिस तरह की हेल्प आपको इमीडिएट मिलनी चाहिए थी वो भी डिले डिले हुआ, काफ़ी डिले, इनफैक्ट बहुत डिले हुआ।
इट वॉज डिलेड टू एन एक्सटेंड बिकॉज हम लोग तड़प रहे थे उस टाइम पे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें एग्जैक्टली आगे। तो वो बहुत बुरी कंडीशन थी, इट वॉज अ वर्स्ट कंडीशन मेरी एंटायर लाइफ में। ऐसा कंडीशन मुझे लग रहा था कि आई वुड नॉट एबल टू स्पीक, क्योंकि ऐसा फीलिंग आ रहा था अंदर, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और जो होटल हैं उन लोगों ने कुछ, उनका रिस्पॉन्स ही नहीं है अभी तक, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। तो वो चीज़ तो बिल्कुल एक तरफ उन लोगों की तरफ से नेग्लिजेंस है गंदे वाली। वो तो उनको करना चाहिए कि एटलीस्ट कॉल करते, हॉस्पिटल आते, पूछते। पुलिस से भी कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ के जिस तरह का एक्सपीरियंस ये रहा आपका, आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, अगली बार शायद आप जाने से पहले भी घबराहट हो। देखिए, माउथ फ्रेशनर एक ऐसी चीज़ है जो आप डाउट नहीं करते कि क्या है क्या नहीं। इट्स अ माउथ फ्रेशनर, कोई भी आपको देगा, आप उठाओगे सीधा मुंह में डालोगे, आप ये भी नहीं देखोगे क्या चीज़ है, उठाया मुंह में डाला। तो आप डाउट नहीं कर सकते माउथ फ्रेशनर पे। तो कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वो हमारे सामने, हमने मांगा भी नहीं, हमारे सामने खुद ही लेकर आई। हमने उठा के जब मुंह में डाला, लाइक वो ग्रेनुल्स बिल्कुल मिश्री जैसे ही मिश्री जैसे, इट वाज शुगर फ्लेक्स, मिश्री जैसे थे वो। हमने उठाया 2-3 फ्लेक्स बिकॉज वी वर अबाउट टू लीव। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी होगा, जो आई थिंक उन्होंने कलेक्ट भी किया होगा, जो पुलिस है उसमें दिख रहा होगा साफ कि उन्होंने हमें पकड़ाया, हमने मुंह में डाला और सडनली, मतलब विद इन सेकेंड्स, ब्लड एवरीथिंग वाज कमिंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत है। बड़ी लापरवाही का मामला रेस्टोरेंट की तरफ से, रेस्टोरेंट के स्टाफ की तरफ से, और सबसे बड़ी बात ये कि घटना के बाद रेस्टोरेंट के स्टाफ की तरफ से बिल्कुल इनको मदद नहीं दी गई इमीडिएट। और उसके बाद इनका कहना है कि जब पुलिस भी वहां पर पहुंची तो वो देरी से पहुंची और उनकी तरफ से भी इनको तुरंत मदद नहीं मिली। अंकित ने खुद कार ड्राइव करके अपने दोस्तों को अस्पताल तक पहुंचाया और समय रहते अस्पताल तक पहुंचाया, जिनमें से कि एक की हालत अभी भी खराब है, जो कि आईसीयू में एडमिट है। बाकी लोग बेशक वार्ड में आ गए हैं, लेकिन सबकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और ये एक बहुत बुरा उनके लिए अनुभव रहा। आगे एक बात, आखिरी सवाल पूछेंगे कि क्या एक्शन चाहते हैं आप? रेस्टोरेंट की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आई, इस तरह का इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, क्या और एक्शन होना चाहिए? क्या पुलिस की भी कार्रवाई पे सवाल है? बेसिकली मेरे हिसाब से तो पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी अभी तक वो भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो एफआईआर उन्होंने लॉग किया है दैट इज़ ऑल्सो ए सिंगल पर्सन नेम वाज देयर, बट इट इज़ एंटायर रेस्टोरेंट फॉल्ट। That action should be taken against that particular restaurant entirely, not a single person, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन का टेक कॉल या नहीं हो सकता नेग्लिजेंस, इट इज़ एंटायर रेस्टोरेंट फॉल्ट। इवन पुलिस ऑफिशियल्स ने भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि सेकेंड नाइट को एमएलसी वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे लॉक्ड द एफआईआर अराउंड 5 o'clock on Sunday. I'm not sure what is going on. No update is there from police side also. Even I was seeking calls. I was expecting calls, but no update as of now with me. पुलिस की तरफ से भी आपको अभी तक कोई नहीं, कोई अपडेट नहीं है। So I just want कि such kind of chemicals should not be used, at least available in such kind of packaging and such kind of restaurants, because this could be harmful for anyone. If we were, I was feeling lucky literally from past 48 or 72 hours, because some would not offered it to my daughter. If would have given, then I'm not sure what would have gone wrong. Even luckily I was able to help them, otherwise we were on our own. And as I got the knowledge from hospital team, from Google and all, it is a very harmful chemical. Even one that flake, if would have gone inside their body, then they could have died also. बिल्कुल। तो ये इतना खतरनाक केमिकल जो कि जिंदगी का भी सवाल था इसमें और लाइफ थ्रेटनिंग था उनके लिए। गनीमत है कि समय रहते उनकी जान बचाई जा सकी, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो कि 5 जानें ले सकती थी। और छोटी बच्ची के साथ अंकित उस रेस्टोरेंट में गए थे और अभी उसको याद करके अभी भी डर में है कि शायद अगर
कहीं ऐसा हो जाता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, बाकी लोग अपने घर पर जरूर हैं, लेकिन इस लापरवाही ने इनको बहुत डरा दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए विजय ममगई के साथ ग्रेटर नोएडा से मैं अभिजीत ठाकुर।